Hey guys, अच्छा जल्दी से confirm if you are able to hear me. Hello everyone. Guys, please confirm the audio. Are you guys able to hear me? Hi Shreyashri, hello Sakshi. Okay, this is our first lecture, probably the only lecture because this is a small topic. Greatest integer function. So we'll be covering greatest integer function and we'll be covering fractional part function also. Okay. Hi Nalin, hello Ivanshi. सुनाई दे रहा है ना ऑडियो? ओके, ऑडियो सुनाई दे रहा है क्या? Great. Hi Achal, good evening. Least integer function is the same thing Nalin. Greatest integer function मैं बताता हूँ आपको, समझ में आ जाएगा. There is nothing called least integer function per se. क्या हो रहा है ये? Okay. My name is Amit Surana. I am an educator here at Unacademy. Please do not forget to follow #CatLiveDaily on Instagram. These are our Telegram groups. Their links are provided in the description. Hello Suchi. These are all the ongoing and upcoming batches. Please get yourselves enrolled into them. To enroll, take up one of these subscription packages. Use my referral code Surana Live. Once you use the referral code, you would be able to get a discount of 10%. You can also take the iconic subscription. Again, use my referral code Surana Live for the same. Shall we begin? Hi Aditya. Chalo, let's start with greatest integer function. Yes, greatest integer function is usually denoted by these partial, this half square brackets. Okay, give me 1 second guys, कुछ तो problem लग रहा है. हाँ, yeah. So these square brackets, so sometimes they can also be written as f of x. They can also give it as square brackets, but then they'll mention what these square brackets mean, right? They'll tell you this denotes greatest integer function. Okay, they'll give you that. Okay, so according to this greatest integer function, all it does is for any real number, this applies only for real numbers, okay, not for any other things. For any real numbers, your f of x, that is greatest integer of x, will be the greatest integer that is less than x. Yes, greatest integer that is less than x. That's what greatest integer function means. For example, if I'm saying that f of x is greatest integer of x, and if x is equal to, let's say 1.2, okay, then what will be f of x ka value? F of x ka value will be what? A value less than 1.2 but the greatest integer possible. Yes, so first let's find out values less than 1.2 which are integers, right? Values less than 1.2 that are integers, which would be what? 1, 0, -1, -2 and so on. Out of these, which is the greatest value? 1. This is your greatest integer function. So f of x or f of 1.2 will basically be 1. Understood? I hope you are able to understand this. ठीक है?
अचल नंबर सिस्टम एक बार पढ़ के आओ, जाओ अचल नंबर सिस्टम पढ़ के आओ एक बार। इंटीजर बोला है, पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर नहीं बोला है। क्यों? बेसिक्स गाइज, एक बार प्लीज बेसिक्स अपने स्ट्रॉन्ग करो, उसके बाद ये सब करो। दीज आर ऑल एडवांस टॉपिक्स। ये पढ़ने के लिए प्लीज गेट योर बेसिक्स राइट, ठीक है? उसके बिना नहीं होगा। So this is how the graph will be for a greatest integer function. Greatest integer function का ग्राफ ऐसा रहेगा कि whatever is your x का वैल्यू, जो भी आपके x का वैल्यू है, let's say if your x is value is 1.2, जैसे अपने एग्जांपल के हिसाब से 1.2 we had taken, right? So 1.2 कहाँ पे रहेगा? 1.2 lies here, 1.2, right? मतलब 1 से लेके 1.2 तक, है ना? 1 से लेके 1.2 तक का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या रहेगा? 1 ही रहेगा। दिस समझ रहे हो? यस। सेम वे दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ सीलिंग फंक्शन। सीलिंग फंक्शन भी बोलते हैं इसको, सीलिंग फंक्शन। ओके, यहां पे क्या होगा? लेट्स से इफ x इज इक्वल टू 2.5, यस 2.5 कहां पे? यहां पे। सो दिस इज वेयर योर x लाइज, बट इसका y क्या रहेगा? y विल बी 2। गेटिंग इट? तो 2 से लेके इंक्लूडिंग 2 ऑल द वे टिल अ वैल्यू लेस देन 3। तो क्या होगा यहाँ पे? फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम सेइंग इफ योर x का वैल्यू लाइज बिटवीन 3 एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, समझ रहे हो? The value of x will be greater than or equal to 2 or will lie between 3. Then if this is the case, then your greatest integer function of x will be what? 2. Yeah. On the other hand, if I'm saying that if your x lies anywhere from 3 including 3 excluding 4, yes, greater than 3 but greater than or equal to 3 but definitely less than 4, then the greatest integer function of this x will be what? 3. समझ रहे हो? Whatever value is given, less than that but greatest integer possible. Yes, works for negative values also. Negative values में थोड़ा सा ध्यान से, it will be what? From 0 not included to -1, रिवर्स में जा रहे हैं तो, right? If x is less than 0, समझ रहे हो? If x is less than 0, तो फिर क्या हो जाएगा? Let's say if I am saying that x lies between -3 and 2, yes, -3 and 2, and it's equal to -3, correct? -3 and -2. Then what will your greatest integer value of x be? So -3 and 2 के बीच में, मतलब कहाँ पर है? -3 and 2 के बीच में, somewhere here. Yes. तो इससे छोटा वैल्यू, a smaller value than this, इसमें -2 से छोटा वैल्यू कोई निकालो। Let's say -2.4. Yes. If x is equal to -2.4, then f of x, that is greatest integer value of x, will be what? Integers less than -2.4. ध्यान से, -2 नहीं आदित्य, exactly my point. यस, -2 नहीं, इससे छोटा वैल्यू कभी भी ये लेफ्ट में जाता है। दिस सीलिंग फंक्शन, इस सीलिंग फंक्शन जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, उसका लिमिट्स कभी भी लेफ्ट में रहेगा। ऑलवेज मूव 1 स्टेप टू द लेफ्ट। यस, तो क्या हो जाएगा ये? -2.4 से छोटा वैल्यू क्या क्या होगा? -3, -4, -5 एंड सो ऑन। इसमें सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है? -3। सो योर वैल्यू इज व्हाट? -3। समझ गए? तो यहां पे क्या हो जाएगा? f of x, योर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x विल बी -3। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। आ रहा ना समझ में? ठीक है, यस। चलो क्विकली ट्राई दीज आउट, ट्राई द फर्स्ट वन आउट। What will be the greatest integer? So f of x is what? Greatest integer function of x. Then find f of x for the given values of x. 4.1 का बताओ जल्दी से। Hi Afrin, thank you very much. मैं मम्मी को बोलूंगा अपनी, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। 4, beautiful, very good guys.
So what is it? Integers less than 4.1 will be what? 4, 3, 2 and so on. उसमें से greatest 4. Yes, try this second. Try the second one, 7.999. हाँ श्रेयसी यहाँ पे है, देखो नेगेटिव में समझाएंगे, यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे तो समझ में आ जाएगा आपको. Superb. So 7.999 approximated is 8, but it's not 8, correct? It is less than 8. So if it's less than 8, then the integer before 7.99 क्या होगा? 7.999 यहाँ पे है, इसके पहले क्या आएगा? 7, 6, 5, so on. इसमें से सबसे greatest क्या है? 7. So your answer is 7. Integers only integers. Okay. Now for people who had doubts with the negative वाला, ध्यान से सुनो. -1.56 का देखना है ना. तो -1.56 से छोटे इंटीजर्स क्या होंगे? -1 छोटा है. Is -1 छोटा than -1.6? Is this true? नहीं ना, ये गलत है ना. नेगेटिव में क्या होता है? उल्टा होता है, राइट? सो व्हाट विल इट बी? -2, -3, -4. समझ रहे हो? ठीक है. सो व्हाट हैपेंस हियर? इसमें इनमें से सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सा है? ये -2 सबसे बड़ा, -4 से बड़ा -3, -3 से बड़ा -2, राइट? सो आंसर इज व्हाट? -2. यस साक्षी, श्रेयसी, समझ में आया? Did you guys understand this? Sakshi, Shreyashi, all of you? Yes, cool, no? Done. Try the fourth one. Jaldi se try the fourth one. Fourth वाला try करो. √3. सुपर्ब नलिन. √3 का वैल्यू क्या है? 1.73. सो 1.73 से छोटे इंटीजर्स 1, 0, -1 ऐसे जाएगा. इससे सबसे बड़ा क्या है? 1. दैट इज योर आंसर. 1 इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन √3. गॉट इट? आदित्य क्यों भाई? 1 या √2 इज नॉट इंटीजर, तो √1 बोल सकते हो. √1 यू कैन. यस, परफेक्ट स्क्वायर लेस देन दिस. ठीक है. एंड दिस 5. क्विकली आंसर द फिफ्थ वन. माइनस ऑफ √9. माइनस ऑफ √9. रॉकेट सेज -3. सूची सेज -4. पृथ्वी says -4. Okay, now listen to this. Less than or equal to? Yes, not less than or equal to. समझ में आ रहा है? Because what will be the limit here? Here the limit will become what? -3, value greater than -3, less than 4. समझ रहे हो? और value greater than -√9 and less than √16. I hope you are able to understand this. तो इसका क्या होगा वैल्यू? It will always be this only. ठीक है, तो इसका क्या होगा? -3. हाँ नहीं नलिन, वी आर गोइंग ओनली फॉर पॉजिटिव रूट. हम सिर्फ पॉजिटिव रूट के लिए जा रहे हैं. जस्ट द पॉजिटिव रूट. या वरना तो ऊपर में भी तो होता ना. ऊपर में भी वी वुड हैव हैड प्लस एंड -1. +1 -2 इन फैक्ट. +1 और -2 नहीं किए ना. वी आर ओनली गोइंग फॉर पॉजिटिव वैल्यू. ठीक है. Yes, we are only going for positive root, not the negative one. ठीक है. Yeah, provided Nalin, let's say here they'll give you a condition. यहाँ पे condition देंगे कि x has to be greater than 0 और x has to be less than 0 ऐसे. So here if they tell you x has to be less than 0, then you can't go for +3. Cool. Now let's talk about a few properties of greatest integer function. Yes, property 1, if you want to find out the greatest integer function of x plus k, where x, ये k है, हाँ, where k is an integer. अगर k कोई integer है, yes, then it will basically be greatest integer of x plus k.
I'll give you a quick example of this. जल्दी से सुनो. फर्स्ट वाले का एग्जाम्पल सुनो. Let's say if they are asking what is the greatest integer function of 1.3 plus 2. 1.3 plus 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा? या तो आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हो विच इज 3.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन विच इज 3, और व्हाट यू कैन डू इज टेक दिस 2 आउटसाइड बिकॉज इट इज एन इंटीजर. क्योंकि ये इंटीजर है इसको बाहर ले लो. ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1.3 प्लस 2. ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.3 इज व्हाट? 1. 1 प्लस 2 इज व्हाट? 3. समझ गए? ओनली एंड ओनली इफ k इज एन इंटीजर. अगर k इंटीजर नहीं है तो फिर ऐड करके ही करना पड़ेगा. सेकेंड प्रॉपर्टी, नेगेटिव वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर. वी जस्ट लुक्ड एट इट. नेगेटिव वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर इफ नेगेटिव वैल्यू इज एन इंटीजर. अगर x इंटीजर है, जैसे अपन ने देखा था -3, व्हाट विल बी द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ -3? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होना चाहिए? लेस देन और इक्वल टू दिस. सो इक्वल क्या है? -3. दैट्स इट. यस. इफ x इज नॉट एन इंटीजर, अगर x इंटीजर नहीं है तो फिर क्या हो जाएगा? उसका एक वैल्यू कम. Yes, if x is not an integer, then what would happen? You would go one value less. Are you getting this? If x, for example, if x is, let's say -3.4, yes, -3.4 अगर है x, तब क्या करोगे? -3.4 -1 क्या हो गया? -4. Yes, इसका is what? -4. समझ गए? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस. -4.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है? 4. ठीक है, कूल. एनी डाउट्स हियर किसी को? एंड या दिस इज समथिंग दैट इफ यू वांट टू नो अगेन, लाइक if the greatest integer function of a function is greater than equal to L, then f of x is greater than equal to L. वो तो चलो यूज नहीं होगा. चलो quickly try this example. कुणाल, नहीं भाई, हम लोग फंक्शंस कई हफ्तों से कर रहे हैं. we've been doing functions for a very long time now. आप आई गेस सिर्फ मेरे को स्पेशल पे फॉलो कर रहे हो, है ना कुणाल? यू आर नॉट फॉलोइंग मी ऑन यूट्यूब. एम आई राइट? YouTube पे तो चल रहा है ना. पीछे जाके देखो, मेरे वीडियोस दिखेंगे नहीं आप लोगों को. मेरे वीडियोस ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, दिखेंगे नहीं. वो एकदम पीछे पीछे छुपाए रखते हैं. हाँ बस, फिर और क्या कुणाल? Sakshi says D, Nalin says D, Humid says B. Varun, one in the afternoon and one in the evening. We are doing 2 sessions, 3 p.m. to 5 p.m. and 8 p.m. 3 p.m. to 5 p.m. we've just started mensuration. Tomorrow we'll be doing 3-dimensional mensuration, and here we are doing algebra. Got it? Okay, look at this. Find the value of x such that greatest integer function of x plus 3 should be equal to 3. Yes, so if you remember, we had looked at an exact situation like this, correct? मेरी क्लासेस आपको नहीं दिखेंगे गाइस कहीं पर भी, लाइव हो, रिकॉर्डेड हो, पुराना हो, नया हो, कहीं पर भी नहीं दिखेंगी. You're gonna have to dig in.
यस, सोना कभी भी ऊपर ऐसे तैरता नहीं है, राइट? यू गोना हैव टू डिग इन सम माइंस, यू गोना हैव टू फाइंड देम आउट. सो yeah, okay, so what did we see? We saw that greatest integer function plus k, if k is an integer, then what would it be? Greatest integer function of x plus k, right? So what we are looking at here is greatest integer function of x plus 3 will basically be greatest integer function of x plus 3. If this should be equal to 3, then the greatest integer function of x should be 0, correct? इस 3 को यहाँ पे लेके गए तो when will it be 0? Anybody? ये कब 0 रहेगा? हैं guys? When will this be 0? When x is greater than 0 and equal to 0 or less than 1. Correct? समझ गए? So what is it? None of the above. Yeah, chalo. Now okay, before we move on to fractional part, let's talk about the price hike guys. ये होने वाला है प्लस पे, आइकॉनिक पे, दोनों पे होने वाला है. Yes, it's gonna happen real soon. Before this happens, go ahead and take it, right? And छोटा मोटा increase नहीं है, it's almost 20-30% का increase है. देखो यहाँ पे there's an increase of almost 5,000, 6,000. यहाँ पे there's an increase of 11-12,000, right? Here there's an increase of 9,000. Here there's an increase of almost 26,000. Yes, so before this happens, go ahead and take it. Use my referral code Surana Live for it. Okay, chalo, let's move to fractional part function. Are you guys ready? हाँ साक्षी, उसमें हैं सारे वीडियोस, करेक्ट. a by n लगाइए. चलो फ्रैक्शनल पार्ट की बात करते हैं. नाउ व्हाट इज फ्रैक्शनल पार्ट टेक्निकली? कि जब व्हेन आई टेल यू दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यस, लेट्स टेक एन एग्जांपल. एग्जांपल के साथ समझाऊंगा तो आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है? लेट्स से x इज इक्वल टू 1.3. यस, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा? 1.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जल्दी बताओ गाइस. Quickly tell me. Greatest integer function of 1.3 will be how much? 1, है ना? Beautiful. So fractional part function f of x is given as this. Curly brackets में x अगर है, that basically means the difference between the actual number and the greatest integer function. For example, यहाँ पे अगर मैं if I go for the fractional part of this x, it will basically be what? X minus greatest integer of x. That is what? 1.3 minus 1. So fractional part of x. Have you guys noticed ये कितना मुश्किल है? मतलब ये opposite side में बनाना is 0.3. Understood? I hope you are able to understand this. Guys, hit like on this video if you really appreciate what I am doing here. ये आया क्या समझ में? Yeah. So greatest integer. अच्छा ठीक है, ये गलत, ये पुराने वाले का है. Your fractional part will always be greater than equal to 0. Yes, it's always a non-negative real number. Yes, and इसका ग्राफ ऐसा रहेगा. इसका ग्राफ ऐसा रहेगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर गोइंग फॉर एनी वैल्यू बिटवीन 0 and 1, x का 0 और 1 के बीच में कोई भी वैल्यू जाओगे तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज योर लाइन वेयर यू हैव x का वैल्यू रेंजिंग फ्रॉम, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू रेंजिंग फ्रॉम व्हाट? 0 till 1. यस, 1 नॉट इंक्लूडेड. सेम वे यहाँ पे
1 to 2 2 not included, 2 to 3 3 not included. समझ में आ रहा है? 3 to 4 4 not included. ऐसे. I hope you are getting this. Yes. y का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे? y का वैल्यू will always be 1. It will either be 1, it will either be 0, or it will lie between these two. Yes, so x, fractional value of x is always greater than 0. Fractional value of x is always less than 1. That is why it's called fractional value. Fraction क्यों बुलाते हैं उसको? फ्रैक्शन कब होता है? जब आपका वैल्यू लेस देन 1 हो, ग्रेटर देन 0 हो, राइट? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसीलिए. चलो एक एग्जांपल पहला वाला ट्राई करो. ट्राई द फर्स्ट वन. कम ऑन गाइस, जल्दी से पहला वाला ट्राई करो. y की वैल्यू 1 नहीं होगी, 1 से कम होगी. y की वैल्यू 1 नहीं होगी, 1 से कम होगी. हमेशा 1 से कम, 0 से ज्यादा. 0 से इक्वल हो सकती है, इक्वल एंड ग्रेटर देन 0, बट डेफिनेटली लेस देन 1. नलिन से 0, साक्षी से 0. मिलन क्या बोल रहे हो इसका? सो देव गिवन व्हाट? फर्स्ट वाले का देखो, x का वैल्यू 1 है. व्हाट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x? ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ x क्या होगा? 1 ओनली, है ना? सेम 1. 1 is an integer, less than equal to 1 is 1. So what will be the difference between them? X minus greatest integer of x is what? 1 minus 1, 0. Yes, so यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी है? प्रॉपर्टी समझ में आ रहा है यहाँ पे? Fractional part of x will be equal to 0 when x is an integer. जब x ऑलरेडी इंटीजर है, तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? 0. ट्राई द सेकेंड. ए मिलन, तुम ये कर रहे हो क्या कब से? मैं सोच रहा तुम पुराना क्वेश्चन पूछ रहे हो और उसका कोई ना कोई एग्जांपल दिए जा रहा हो. हाँ, व्हाट अबाउट द सेकेंड वन? पाई. अप्रॉक्सीमेट कर लो. यस, पाई इज व्हाट? 3.142857 अप्रॉक्सीमेटली. यस, दिस इज x. Greatest integer function of x will be what? A integral value less than 3.14, which is 3. So what is fractional part of x? 3.142857 minus 3, which is 0.142857. ठीक है? Yes, provided you are taking pi as 22/7. Yes. Try this third वाला try करो. सेवन AM वाला तो अपने आप हो जाता अपलोड. मिलन, 7 AM वाला अपने आप हो जाता अपलोड. साक्षी से 0.44. अदर्स, साक्षी और मिलन बोल रहे हैं 0.44. बाकी लोग? तो देखो यहाँ पे थर्ड वाले का x इज -1.56. ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वैल्यू ऑफ x क्या होगा? -1 से छोटा वैल्यू, दैट इज नॉट -1. -1.56 से छोटा वैल्यू इज -2. यस, स्टेप बाय स्टेप कर लो अगर डिफिकल्टी हो रहा है. तो व्हाट इज फ्रैक्शनल पार्ट? -2 माइनस ऑफ
सॉरी उल्टा, -1.56 माइनस ऑफ -2, जो कि क्या हो गया 2 माइनस 1.56 विच इज इक्वल टू 0.44. ठीक है, वेरी गुड. एवरीबडी हु सेड 0.44, ब्यूटिफुल. अच्छा मैं चेक करता हूँ मिलन, आई चेक एंड लेट यू नो. ट्राई द फोर्थ वाला ट्राई करोगे. नेगेटिव का कभी भी ध्यान से. यस, एंड यू वुड हैव नोटिस्ड बाय नाउ कि x का वैल्यू भले ही कुछ भी हो, x का वैल्यू कुछ भी हो, यस, योर फ्रैक्शनल वैल्यू विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू x एंड लेस देन 1. ठीक है, 0.414. Okay, so what is it? What's given to us? X is given to us as √2, approximated to 1.414. Greatest integer function of x, ये थोड़ा सा मुश्किल है. Greatest integer हाँ is 1. So what is fractional part of x? 0.414 approximately. Try this. Fifth वाला try करो. Quickly try the fifth one. Fifth, x is given as -17/5. 0.6, 0.4, others 0.6, 0.4 और कोई. So what you can do is अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू क्या होगा इसका, -3 पॉइंट समथिंग. करेक्ट, दिस विल बी व्हाट -3.66 बार. एग्रीड. -3.4. यस, सो x is -3.4. ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन विल बी व्हाट, विल इट बी -3? इट विल बी -4. सो पार्शियल फंक्शन क्या, पार्शियल वैल्यू क्या हो जाएगा, -3.4 minus of -4 which is +4. This is what 0.6. ठीक है, ब्यूटीफुल गाइस, वेरी गुड. समझ में आ गया अभी, है ना? तो अभी कोई टेंशन नहीं है ना. अभी आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पता चल गया. यू अंडरस्टूड व्हाट फ्रैक्शनल वैल्यू फंक्शन इज, राइट? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन इज ऑल्सो. या इसके थोड़े प्रॉपर्टीज देख लो, ये अपन ने देख लिया था. फंक्शनल फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x विल बी 0 if x is an integer. Fractional part of a positive value plus fractional part of a negative value will be equal to 0 if x is an integer. अगर x integer है तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि ये भी 0, ये भी 0. For example, fractional part of 3 plus fractional part of -3 क्या होगा? I don't think so, नलिन, मैंने तो कभी नहीं पढ़ा. Fractional part of 3 will be what? 0. Yes, because 3 minus 3 0 हो जाएगा. यहाँ पे -3 का क्या होगा? 0. So 0 plus 0 is equal to 0. समझ गए? इसीलिए इसका 0 रहेगा. Yes. And if x is not an integer, then that value will be 1. For example, if you are looking at 3.4 प्लस -3.4, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 3.4 minus 3.4 प्लस इसका क्या हो जाएगा? -3.4 minus of -4 which is 0.6. This will always be 1. बुझे? समझे क्या? ये वाला पार्ट समझ गया ना? अगर x इंटीजर नहीं है तो 1 रहेगा, अगर x इंटीजर है तो 0 रहेगा. ठीक है, ये सुन लो रिमाइंडर का, वेरी इंपॉर्टेंट. ये आपने पहले वाले में देखा होगा, प्रीवियस केस में देखा होगा कि a by b का अगर आप फ्रैक्शनल वैल्यू ढूंढ रहे हो, दैट्स बेसिकली इक्वल टू r by b
where r is nothing but the remainder when a by b is divided. प्रीवियस एग्जाम्पल अपन ने देखा था ना 17/5 का माइनस 17.5 का देखा था ना अपन ने. तो चलो चलो इसी में एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं आपको. लेट्स से you have to find out what is the fractional part of 17/5. fractional part of 17/5 क्या होगा यहाँ पे? remainder is basically what? when 17 is divided by 5, remainder is 2, so this will be 2/5 which is 0.4, जो कि सही है. ये क्या है? 3.4. so fractional part of 3.4 is 0.4. कंडीशन समझ में आ गई? हाँ दिया, वैसा फंक्शन है, नहीं है करके नहीं बोल रहा हूँ, वो फंक्शन है, बट देन दैट डजंट गेट आस्क्ड दैट मच. बट अगर आपको चाहिए, इफ यू गाइस इंसिस्ट, विल डू दैट. उस पे भी क्वेश्चंस कर लेंगे, कल कर लेंगे उस पे. ठीक है, चलो नाउ क्वेश्चन टाइम. हियर इज योर फर्स्ट क्वेश्चन. ध्यान से पढ़ो, आराम से पढ़ो एंड देन डू इट. ओके, read the question carefully and do it. हाँ मिलन, अगर नेगेटिव वैल्यू है, if it is negative then you what we did earlier, right? 1 माइनस हो जाएगा उसका, 1 माइनस जो भी वैल्यू आएगा दैट इज. ठीक है, पहले में 0.6 आया था, याद है आपको? माइनस 17/5 में क्या आया था? 0.6. यस, which is basically क्या 1.2 by 0.6 is what? (0.12/5) नहीं, 0.3/5. 3/5 सॉरी. 1 माइनस 2/5 करोगे तो 3/5. समझ रहे हो? अगर वो नेगेटिव हुआ तो 1 से सब्ट्रैक्ट करने का, बस दैट्स इट. ओके, ट्राई दिस. x हैज टू बी अ पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट x स्क्वायर प्लस फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ x स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 27. It's not very simple this question, थोड़ा सा टाइम लगेगा समझने में. Try however. अरे मिलन, यहाँ पे तो टाइम ही टाइम है, कितना चाहिए उतना ले लो. Anyone else?
you will not get an integral value. यहाँ पे integral value नहीं आएगा. You will definitely get it in irrational roots. Irrational roots ही आएंगे. Don't worry. Imaginary नहीं, real है but irrational है. ठीक है. चलो start करते एक बार के लिए, फिर आप carry on करो. Look at this. This is x square plus some value, right? We know this value will lie between 0 and 1. करेक्ट. यहाँ पे जो ये x का ये जो पार्शियल वैल्यू ऑफ x इज लाइंग बिटवीन 0 एंड 1, राइट. सो व्हाट हैपेंस हियर, इट्स क्लियर दैट जो भी है इस पे डिपेंड करेगा. सो वी नो x स्क्वायर हैज टू बी अ लिटिल लेस देन 27. यस, अ लिटिल लेस देन 27. तो क्या हो सकता है, x हैज टू बी व्हाट, मस्ट बी ग्रेटर देन 5 और इक्वल टू 5. अगर 5 हुआ तो भी हो सकता है, और x has to be less than 6. Agreed everybody? Yes, no, जल्दी से बोलो. हाँ या ना? Correct. Yes. Now look at this. If x is equal to 5, if x is equal to 5, तब तो क्या होता है 25 plus 0, क्योंकि x इंटीजर है, 25 plus 0 होता, right? So it will basically be x has to lie between 5 and 6, not equal. X has to lie between 5 and 6. Got it? अगर x, let's say if x is equal to 5, if x is equal to 5 तो क्या हो जाता, x square 25 plus partial value of 5. yes, fractional value of 5 क्या होगा, 0. तो 0 square तो 0 ही हुआ ना, तो इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, exactly 25. correct, but it's not, it's 27. so it's understood that x has to lie क्या, less than 5 and greater than 6. yes. now how about this flower, flower बोल रहा हूँ, पट के flower हो गए. this one, fractional value of x का क्या सीन होगा, डेफिनेटली ग्रेटर देन 0. अगर 0 हुआ तो फिर इंटीजर हो जाएगा. इंटीजर नहीं है, पता है. इंटीजर होगा तो 20 या तो 25 होना चाहिए या 36 होना चाहिए, 27 नहीं होगा. सो x इज फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ x इज ग्रेटर देन 0 एंड डेफिनेटली लेस देन 1. करेक्ट, एग्रीड. तो इसका स्क्वायर भी क्या होगा, इसका स्क्वायर भी 0 और 1 के बीच में रहेगा. Agreed? Or what we can do here is, इससे फिर आपको प्रिसाइज वैल्यू नहीं मिलेगा. You won't get a precise value. एक काम करो फिर, यू एक्सपैंड दिस. दिस इज व्हाट, दिस इज इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x. करेक्ट. इन दिस केस इट विल डेफिनेटली बी लेस देन x. ये जो है वो डेफिनेटली लेस देन x ही होगा. सो यू कैन राइट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x एज n minus r, n plus r. ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को अपन n प्लस r नहीं, n माइनस r लिखेंगे. नहीं, चलो x को ऐसे कर, रुको. हाँ, ये है ना, दिस इज द सीन. सो व्हाट इज x? x इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ x. करेक्ट. यस, इसको अपन n ले लेंगे ताकि ये रिपीट ना करना पड़े, और इसको हम r ले लेंगे. कॉल दिस एज n, कॉल दिस एज r.
ठीक है, एन आर, क्योंकि ये दिस इज योर नेचुरल नंबर एंड दिस विल बी योर रिमाइंडर, है ना, उस हिसाब से, बट ठीक है. सो एक्स कैन बी रिटन एज एन प्लस आर. ओके, यहां पे वी नो दैट एन विल डेफिनेटली बी इक्वल टू 5. ये जो n है, ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ x विल डेफिनेटली बी इक्वल टू 5. ये तो समझ गए, yes or no? x lies between 5 and 6, that means greatest value of x will be equal to 5. Everybody agreed? हाँ ना बोलो जल्दी से guys. Do you agree with this? Don't leave just yet. मैं solve करूँगा. I'll help you out. Don't worry. Don't leave just yet. Yes. और r का क्या सीन होगा? r is what we need to figure out. Right? r is what we need to figure out. So look at this. So if this is 1, this won't be 1, ये 1 नहीं होगा. अगर ये 1 हुआ तो what is the greatest possible value of x square? Yes, x square will be what? Definitely less than or equal to 27, but greater than 26. Would you agree? चलो ये सब चाहिए भी नहीं, जाने दो. आई होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट. ये पार्ट समझ में आ गया कि n विल बी 5, है ना, n विल बी 5. तो अभी x क्या है? x इज, कहाँ चला गया? x वी फाउंड आउट इज n प्लस आर. यस, x क्या है? n प्लस आर. तो n प्लस आर द होल स्क्वायर प्लस फ्लावर ब्रैकेट ऑफ x इज व्हाट? r. r स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 27. n we figured out will be 5. Yes, greatest integer value of x will be 5. So this is what? 5 plus r the whole square plus r square will be 27. We'll get the value of r here. क्या मिलेगा आपको? 25 plus 10r plus r square plus r square is 27. You get 2 times r square plus 10r minus 2 is equal to 0. Yes, or your quadratic equation will become what? क्या हो जाएगा आपका quadratic equation? Divide by 2, r square plus 5r minus 1 is equal to 0. I hope you guys are, I'm really hoping you guys are able to understand this till here, है ना? अब इसको क्या करना है? Solve करना है to get the value of r. Yes, r मिल गया तो फिर आपको x मिल जाएगा, क्योंकि n आपको मिल गया है 5, you just need r. यूज योर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. प्लस और माइनस आर के पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगे? प्लस और माइनस माइनस बी, सॉरी माइनस बी विच इज माइनस 5 प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2. सो r क्या है? माइनस 5 प्लस और माइनस रूट 29 बाई 2. यस, अब प्लस और माइनस में हमें पता है r कभी भी पॉजिटिव रहेगा. r विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. एग्रीड? तो r कभी भी पॉजिटिव रहेगा. ओनली पॉसिबल वैल्यू फॉर r विल बी व्हाट? प्लस रूट 29. सो रूट 29 माइनस 5 बाई 2. दिस इज योर आंसर. बुझे? ये है आपका r. ये भी आंसर नहीं है अभी, ये r है सिर्फ. दिस इज जस्ट द वैल्यू ऑफ r. सो इफ यू वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, देन व्हाट डू यू डू? प्लग इट इन हियर. तो x क्या हो जाएगा आपका? x विल बिकम n विच इज 5 प्लस r विच इज रूट 29 माइनस 5 बाई 2. इसको आप और थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? एलसीएम ले लो. 10 प्लस रूट 29 माइनस 5 बाई 2 which is equal to 5 plus root 29 by 2. This is your value of x. समझ में आया? तो approximately क्या हो जाएगा ये? root 29 approximately is 5.38. Yes, 5.38 plus 5 10.38 by 2 5.1925. अप्रोक्सीमेटली. लंबा था क्वेश्चन डेफिनेटली,
डेफिनेटली लंबा था, बट पूछा जाए तो कर सकते हो। ठीक है, थक गए भाई साहब। अनदर वन, इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी? नहीं है, दूसरा मेथड नहीं है सिद्धार्थ, यही है। अगर वहां पे परफेक्ट स्क्वायर होता, वहां पे अगर 25 या 36 देते तो x का वैल्यू फट से निकल जाता, क्योंकि वहां पे दे हैव गिवन अ नॉन परफेक्ट स्क्वायर, इट बेसिकली मींस द टर्म इज नॉट एन इंटीजर, x इज नॉट एन इंटीजर, है ना। चलो ट्राई दिस, वो वैल्यू ऑफ इक्वेशन पे डालोगे तो सेटिस्फाई करेगा। 5 स्क्वायर इज 25 प्लस 0.19 स्क्वायर करोगे तो ऑलमोस्ट इट विल कम टू 25 प्लस 2 ऑलमोस्ट आएगा। सॉरी, मैं क्या कर रहा हूँ, अलग अलग ऐड कर रहा हूँ। x square plus that is given, so 5.19 square plus 0.19 square आ जाएगा 27 के आसपास आ जाएगा। और क्वेश्चन आप शायद बराबर से नहीं पढ़े हो। देखो x स्क्वायर प्लस नॉट ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ x, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x नहीं दिया, x स्क्वायर दिया, तो x स्क्वायर क्या होगा 5.19, 5.2 ले लो अप्रोक्सीमेटली, 5.2 स्क्वायर प्लस 0.2 स्क्वायर, समझ रहे हो? यस, 5.2 स्क्वायर इज 27 पॉइंट समथिंग, ये अपन एक्सैजरेट कर रहे हैं, 5.1925 है, बुझे? सेटिस्फाई कर रहा है, this will satisfy definitely। 5.19 अगर लोगे आप, if you're taking 5.19, square of that is 26.9, yes, this will come up to 0.04, which is almost 27, 26.94। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, ये वाला। फाइंड द स्मॉलेस्ट रियल नंबर m सच दैट फॉर ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स x पार्शियल पार्शियल निकल रहा हूं से, फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ 1/x शुड बी लेस देन m। यस, जल्दी से ट्राई करो, दिस यू कैन गो रिवर्स एंड यू कैन गो ट्रायल एंड एरर ऑन दिस। इस पे आप अगर चाहें तो ट्रायल एंड एरर कर सकते हैं। टू 2.5 So fractional value of x should be greater than equal to 0 and less than 1। तो अगर 1/x का ले रहे हैं अपन, फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ 1/x
should also be equal to. इनको ऐड करने पे आपका वैल्यू, इफ यू ऐड दीज, नलिन, इसको ऐड करने पे आपका मैक्सिमम वैल्यू इज लेस देन 2, मिनिमम वैल्यू इज लेस देन 0, इनको ऐड करने पे। समझ रहे हो? तो 2.5 इज नॉट पॉसिबल, हैज टू बी लेस देन 2। Yeah. So they're saying for all positive real numbers ना, all positive real numbers, तो कुछ भी एक plug in कर लो, let it not be 0, 0 को छोड़ के कुछ भी है, मतलब कुछ भी has to be less than m ना। ओके, ट्राई करके देखें। लेट्स इन द फर्स्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर, सॉरी, fractional part of 2 plus fractional part of 1/2 should be less than m. Fractional part of 2 is 0, fractional part of 1/2 is what? 0.5 है ना। 0.5 का नीचे का 0 ही है। So 0.0 should m will be greater than 0। एक चीज़ तो पता चल गया, m वो तो उस यहाँ पे पता चल गया था। ठीक है, now let's take an non-integral value, let m be 1.5। ठीक है, let m be 1.5, greater than 1 ट्राई करके देखते हैं तो क्या होगा। 1.5 is 3/2 प्लस रेसिप्रोकल 2/3 है ना, दिस शुड बी लेस देन m। 3/2 मतलब 0.5 प्लस 2/3 दैट इज 2/3 minus 0 which is 2/3 only। ये क्या है? 1.2, 1/2। It is fractional value within this fractional value is 1/x। 1/x का fractional part, 1/x का fractional part, not this, it's not given like 1 by fractional part of x, ऐसा नहीं है। It is 1/x का fractional part overall है, समझ रहे हो? तो 1/2 प्लस 2/3 कितना हो जाएगा? 1.2 प्लस 2/3 7/6। so m should be greater than 7/6, one thing, m should be greater than 0। 7/6 is 1 से ज़्यादा है, m is greater than 1, that is clear। m 1 से ज़्यादा है, that is clear, correct। अभी let's try another। ट्रायल एंड एरर से नहीं होगा ये, ट्रायल एंड एरर से बहुत लंबा जा रहा है। से अ बिग नंबर लाइक 10 by let's say 3/2 हो गया ना। let's take 5/4। m नहीं, m क्यों लिख रहे हैं अपन कब से? m नहीं है, x है, x। so x इक्वल टू 5/4 पे क्या हो जाएगा? 4/4 हो गया, मतलब बाकी बचा 1/4 प्लस 4/5 पे 4/5 पूरा। अरे भाई 0.5 पुट करेंगे तो सेम ही आएगा ना, m will be greater than 0।
नलिन 2 किया 2 या 1/2 दोनों सेम ही हो जाएगा ना समझ रहे हो. दिस इज टू बी लेस देन m. 5 plus 16 21/20 should be less than m. नहीं गाइस, दिस वॉन्ट वर्क विथ ट्रायल एंड एरर. ट्रायल एंड एरर से नहीं काम करेगा ये तो ऐसे तो जाते रहेंगे. एक्स का कोई यही नहीं दिया ना. दे हैवंट गिवन एक्स का कुछ भी. हाँ सॉरी 1/2. m has to be greater than 1/2. ये तो यहाँ पे प्रूव हो गया कि m हैज टू बी ग्रेटर देन 1. आप जितना जितना बड़ा बड़ा वैल्यू लेते जाओगे उतना उतना होगा. आई थिंक द फास्टेस्ट वे ऑफ डूइंग दिस वुड बी यूजिंग एल्जेब्रा. एक काम करते हैं, विल डू दिस टुमारो देन. लेट्स पुट दिस ऑन होल्ड, लेट्स डू दिस टुमारो. एल्जेब्रिकली होगा ये सिर्फ. दिस इज योर होमवर्क फॉर द डे. होमवर्क फॉर द डे, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. कल करेंगे इसको. दिस इज वेरी लॉन्ग एंड टीडियस. आराम से टाइम लेके करना. ओके ऑलराइट गाइस, दिस 21st March you have your combat Sunday 12 PM. Please ensure that you give combat. Use my referral code Surana Live to access it. You can ask a doubt if you are a plus or an iconic subscriber by using ask a doubt feature. To use that, take the subscription, use my referral code Surana Live, get a 10% discount on doing so. You can also go for iconic, where you have personal mentor, you get test reports and analysis, OMET preparation, and all the other benefits of plus. Use my referral code Surana Live, get a 10% discount. Yeah, tomorrow 7 AM we have class guys. Tomorrow 7 AM, 12 PM, 6 PM. Tomorrow schedule. Tomorrow is what? 20 March. 7 AM, 3 PM. Sorry. 7 AM, 12 PM, 3 PM, 6 PM, 8 PM. कल का देख लो, फुल पैक है. 7 AM स्पेशल पे है. वी आर डूइंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑन ज्योमेट्री देयर, राइट. सर्कल्स वगैरह पे करेंगे. 12 PM ऑल्सो ऑन स्पेशल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे. 3 PM ऑन यूट्यूब वी विल बी डूइंग मेंसुरेशन 3D. 6 PM वापस स्पेशल पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. कल सुबह जो है, हाँ सॉरी 8 PM पे वी विल डू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का लेक्चर 2. ये कल का प्लान है गाइस. आई विल सेंड ऑल दीज लिंक्स टुनाइट इटसेल्फ. मैं आज रात को ये सारे लिंक्स भेज दूंगा ताकि आपको इजी रहे टू navigate. Yeah, thank you very much guys for being a part of this session. Thank you for remaining till the end, because that's all that matters. I'll see you all tomorrow. Have a great day. Bye bye.